and then we have some questions and comments which we try to cover it up. So we'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Vritam Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tvise Namaha Shri Nityananda Avadhur Tindur Vasudha Prana Vallabha Janava Jeevitapatihi Krishna Prema Padaprabhu Padmavati Shuta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhaunmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunja Viharinim Radhe Meri Swamini मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, पिछले सप्ताह we finished our chapter number 3. और अगर कोई मुझे गिनाना चाहे कि what few main things which we learn out of chapter number 3, जिसे हम बोल सकते हैं ना legends, if anyone can share with me. Prabhuji, bhakti is the
भक्ति से ही हम काम और जो लस्ट है उससे हम बाहर आ सकते हैं. Yes, that is the last श्लोक. जो जो लास्ट श्लोक था वो भगवान ने इसी को नेल डाउन किया था कि there is no other way you can get out of it. दूसरी चीज, so you put the last one at the first, which is the essence of everything. That is what Krishna says. और उन्होंने अंत में यही कहा कि आध्यात्मिक प्रैक्टिस अर्थात डिवोशनल सर्विस की वजह से ही वी कैन गेट आउट ऑफ इट, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट. उससे पहले एक चीज कोई, what are the main cause of you know for us to be on this planet? Prabhuji, that we are that sakam karma karm and vikarm. So what kind of karm we are doing? Like which kind of devi we want to get controlled with, like whatever we are doing. So it takes us to that particular. I don't know if you want. No, I think this karma is fit in your mind very nicely. We haven't discussed sakam karma in entire chapter. So anyway, but yeah, you mentioned about the three guns of material nature, that you're going to choose which you're going to want to travel and all these things. The main culprit or the main enemy of the human life or the jiva is kama, अर्थात lust. जो भगवान ने कहा कि how to, so that is the, he identified what is the main problem for us, which is the lust, which is the kama. He explain us कि भैया काम कैसे प्रकट होता है और कैसे इंसान को नेविगेट करता है गलत कार्य करने से. और फिर भगवान ने कहा कि हाउ टू चैनलाइज इन अ प्रॉपर वे so that it won't bother you and you can get out of it. Like simply अगर आप किसी तूफानी रिवर के अंदर गिर जाते हो and then the water is going to take you over, right? So there is a process that they try to explain कि भैया आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए, try to ask for the help, and when you get the lifeguard you behave in such a way, don't hold him like this, and there are some techniques वो आपको बताते हो और फिर उसकी वजह से आप उस प्रवाह से निकल जाते हो. तो वैसे ही भगवान ने हमें बताया कि हाउ टू चैनलाइज दैट काम थ्रू द प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग, अर्थात वर्णाश्रम से. यानी आप उस लस्ट को भी चैनलाइज कीजिए जो आपके अंदर प्रकट हुआ है विद द कॉन्टेक्ट ऑफ मटेरियल नेचर, और मटेरियल नेचर में भी स्पेसिफिकली विद द कॉन्टेक्ट ऑफ मोड ऑफ पैशन, अर्थात रजोगुण की वजह से. तो रजोगुण की वजह से जो काम उत्पन्न हुआ है, आपके पास दो तरीके हैं. आप नीचे जा सकते हो तमोगुण के अंदर, या फिर इसको प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ लिविंग से उसको चैनलाइज करते यू गो अपलिफ्ट योरसेल्फ इनटू द मोड ऑफ गुडनेस, एंड देन बाय एडिंग द भक्ति एलिमेंट इनटू इट आप फिर उस संसार से निकलने के लिए सक्षम हो जाते हो. So that is what the everything Krishna says, and Shweta Mataji has explained in the last verse. Bhagavan says that everything of controlling and everything is going to be possible only through the, wait, specifically, yeah, this is what he says कि इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रिया मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधानी से आध्यात्मिक बुद्धि से अर्थात भक्ति से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति अगेंस्ट विद द स्पिरिचुअल पोटेंसी और स्पिरिचुअल पावर आप इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हो. दैट इज द स्टैम्प अबाउट इट. तो अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है टू कंट्रोल द माइंड, टू कंट्रोल द इंटेलिजेंस और टू कंट्रोल द सेल्फ, this is the bottom line. Krishna says that all three will be controlled by only one way, and that is bhakti. Bhakti ke alawa is not going to be controlled, no other way. We'll start our today's session by text number 1. Shri Bhagwan Uvacha Imam Vivasvate Yogam
सॉरी, आई हैव टू फॉरगेट टू मेंशन। सो दिव्य ज्ञान, इस चैप्टर का नाम दिया गया है दिव्य ज्ञान अर्थात ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस चैप्टर को कैटेगराइज किया गया है। सो फर्स्ट 1 to 10 जो श्लोक है उसमें भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान दिया गया है कि भगवान कौन है, यू अंडरस्टैंड हु इज। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट टू 10 वर्सेस। 1 से 10 श्लोक जो है वो भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान बताया गया है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। भगवान ने कहा कि श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वं प्रोक्त्वन् अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्रह मनुर ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश अर्थात दिस गीता का नॉलेज, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विच राइट नाउ अभी अर्जुन को दे रहे हैं प्रभु। भगवान उसे कह रहे हैं कि ये मैंने सबसे पहले किसे दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। और विवस्वान ने अपने पिता मनु को उपदेश दिया। अपने पिता नहीं, मनुष्य के पिता, सॉरी, आई हैव टू मिनिमाइज दिस। या सो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया और फिर मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। सो भगवान कह रहे फर्स्ट डिसाइपल ऑफ भगवान इज विवस्वान। उसके बाद जो उसके डिसाइपल बने वो महाराज मनु, जिसकी वजह से हम सब मनु के ही संतान हैं। वी आर द चाइल्ड ऑफ मनु एंड दैट्स द रीजन हमें मनुष्य कहा गया है। मनुष्य कहा गया क्योंकि हम मनु के वंशज है। और फिर राजा मनु ने अपने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु के साथ बांटा। सो ये तीन जो पर्सनालिटीज है, सूर्यदेव विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, हमने कहीं और भी डिस्कस किया था। अगर किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? दिस थ्री पर्सनालिटीज वर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक में डिस्कस किया था इन्हें। इज समवन एबल टू रिमेम्बर? कहाँ पे हमने इनके बारे में चर्चा की थी? ये बहुत बड़े भक्त है भगवान के। एक हिंट दूं फिर? या is it related to some temple, Prabhuji? यस Or यस, is it Ranganath temple? एक्सेलेंट, यस। सो यही तीन पर्सनालिटी है जिन्होंने भगवान रंगनाथ को, सो एवरीवन नोज अबाउट भगवान रंगनाथ जो श्रीरंगम में विराजमान है अपने पुष्पक विमान के साथ। सो भगवान रंगनाथ जो है वो वैकुंठ से ब्रह्मदेव के साथ ब्रह्मलोक पे आए थे और फिर ब्रह्मलोक से वो इस पृथ्वीलोक पे आए। तो इस पृथ्वीलोक पे लाने का कारण, जो मेन रीजन है, वो इन तीन त्रिवेणियों का भक्ति है। दे वर्शिप so nicely and then they please the Lord Narayan, Lord Ranganath, and then Lord Ranganath came from Brahmalok to spiritual lok, sorry, in Bhulok। और यहाँ पे इक्ष्वाकु बेसिकली कौन है? इक्ष्वाकु इज बेसिकली अ वंशज ऑफ लॉर्ड राम। तो श्री रंगनाथ, उनके अयोध्या में उनकी पूजा होती थी टिल लॉर्ड राम वाज इन अयोध्या। तो ये रंगनाथ जो मूर्ति है भगवान की, जो विग्रह है, वो भगवान राम से भी सेवित है। वही नहीं, उनके जितने पूर्वज थे अप टू द विवस्वान, दे विल ऑल वर्शिपिंग लॉर्ड रंगनाथ, जिसमें राजा हरिश्चंद्र आ गए, राजा दशरथ आ गए, राजा अज आए, राजा दिलीप आए, राजा भृगु आए, नहीं, राजा who get the Ganga on this planet, भगीरथ। सो एनीवे, Bhagirath. भगीरथ। सो विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु ये भगवान के दिव्य भक्त थे और भगवान ने पहली जो गीता थी वो इन्हीं को प्रदान की थी, सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। सो भगवान बता रहे कि मैंने, दीज आर द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ माइन, ऐसा अर्जुन को भगवान बता रहे श्लोक के अंदर। मूविंग टू 4.2। एवं परंपरा प्राप्तमेमं राजर्षियो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परम तपः। कि इस प्रकार यह परम विज्ञान, दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिस गुरु परंपरा के द्वारा
प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। किस विधि से? गुरु परंपरा की विधि से। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अर्थात डिस्ट्रॉयड। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यहाँ पे कुछ शब्द है जिसको समझना जरूरी है। तो पहला तो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा इज द फर्स्ट वर्ड भगवान ने कहा। दूसरा राज ऋषि, किसने समझा? राज ऋषियों ने। किस विधि से समझा? गुरु परंपरा की विधि से। लेकिन काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। कौन सी परंपरा छिन्न हो गई? गुरु परंपरा। उसकी वजह से ये ज्ञान लुप्त हो गया। ये दिस विल आंसर सो मैनी जो so called self-made sampradaya, so many adulteration is appeared in the society, and why the real knowledge is not getting conveyed to the people। ये इसका पूरा कच्चा चिट्ठा भगवान यहाँ पे खोल रहे हैं। तो पहली चीज शब्द है राज ऋषि। anyone has an idea why the kings called राज ऋषि? यहाँ पे भगवान ने राज ऋषि क्यों कहा गया? he could just have says राजा, और राजाओं ने इसी विधि से इसे समझा। राज ऋषि का मतलब क्या है? any lights? Maybe Prabhu, they want to say that कि वो ऋषि मुनि या जो गुरु जो होते थे उनसे पूछ कर वो जो है वैसा कार्य करते थे जो राजा थे पहले के जमाने में। Like जी नहीं, that is not the answer। और कोई ट्राई? कोई ट्राई तो कर सकता है ना। everyone can try, right? At least it could be wrong, it could be right, but at least try, so that way you get involved yourself into this talking। otherwise phone कहीं पे रहेगा, camera off रहेगा, and you might be doing something else, you might not involve 100%। so at least trying will make you get you involved into the topic। so try whatever you get a thought। okay, जैसे मेघा ने रखा कि the raja who is talking with the rishi could be Raj Rishi, right? but at least attempt to try, right? Yeah, they might be becoming rishi after some time, or maybe at the later age। that's a good possible chances। जैसे example दिया गया है कि अपने महाराज विश्वामित्र, he was Raj Rishi and later he became Rishi। yeah, that could possible। but यहाँ पे thank you Rohit Pro for trying। तो यहाँ पे राज ऋषि का मतलब क्या है? the king's qualification to be a king in the ancient tradition is not just he is qualified by birth into the dynasty of the kingdom, or he's just having the power to kill the people or to rule the people। the Raj Rishi का मतलब यह है कि those king has to have the ample knowledge of Shastra। उनको शास्त्रों का पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। they need to understand what is this human life is meant for, what is this varna, what is this ashrama, what is the reason behind this varna ashrama, what is the reason behind all this thing, why the person is onto the planet। by thinking all this way, they strategize the design of the execution of the entire kingdom in such a way that everyone can get a chance to get out of this birth and death। that is the reason they call the Raj Rishi। क्योंकि उनके जो decision रहते थे, it is not just meant on the wealth or getting more opulent or getting more suvidha into the kingdom। the decision and the strategy is based on the spiritual aspect of the life। जो मैंने पहले कहा था कि पहले जो हमारी व्यवस्था थी भारतवर्ष की, उसके अंदर आध्यात्म को सेंटर में रखा जाता था और उसके हिसाब से बाकी सब चीजें डिजाइन की जाती थी। So Adhyatma, the spiritual life, is in a center, then the other thing has been designed to support the primary, to support the Adhyatmikta। And for that, the Raj Rishi tendency or the mindset or intelligence is required। And that's why those rishis called the Raj Rishi, right? दूसरा शब्द भगवान ने प्रयोग किया, गुरु परंपरा। भगवान ने स्पेसिफिकली ये गुरु परंपरा को यहाँ पे यूज किया बिकॉज अच्छा चलिए, गुरु परंपरा का मतलब क्या है? जस्ट अ थॉट। वी हियर दिस वर्ड मैनी टाइम, डजंट मैटर इन इस अपने गीता में, बट वी हियर दिस गुरु परंपरा। हमारे घर पे गुरु परंपरा का फोटो है, हमारे गुरु परंपरा में ये आता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु परंपरा?
Anyone wants to try? Yes, Prabhu. Okay. प्रभु, मे बी इट मीन्स कि जैसे जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया हमने वैसा ही आगे जो है पास ऑन कर दिया, मतलब और जो उनके गुरु ने उनको सिखाया था वो उनको मिला, फिर हमारे गुरु से हमें मिला और हमने वैसे का वैसे ही अपने शिष्यों को दिया, मतलब गुरु परंपरा जो आगे चलता आया काइंड ऑफ। यस, सो गुरु परंपरा का मतलब है जो भगवान ने अर्जुन को अभी बताया वही हम एज इट इज अभी डिस्कस करें और सुने, ना कि मैं अपना कुछ तड़का या अपना कुछ तिगड़म अपने खुद के मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बताऊं। अगर मैंने अपना इंजेक्शन यूज किया दैट मीन्स वो अडल्ट्रेशन हो गया, वो एज इट इज नहीं रहा, वो ऑथेंटिक नहीं रहा। तो जो आपको मिलेगा वो मिलावट वाली चीज मिलेगी। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कालांतर में क्या हुआ, ये गुरु परंपरा नष्ट हो गई, क्योंकि मैं अपने गुरु को प्लीज करने में लग गया, इसलिए मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने तोड़ मरोड़ के रख दिया। भगवान ने गीता में जो कहा, भगवान ने ये दिव्य ज्ञान बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस वन 4.1 to 4.10, भगवान ये ज्ञान है भगवान के खुद के लिए कि वो कौन है, उनके हु ही इज। अभी मैं इसके अंदर मैं अपना नाम रख देता हूँ कि ये भगवान मेरे गुरु के लिए बता रहा है या फिर XYZ पर्सन के लिए दिखा रख रहा है। मैंने भगवान की जगह पे उनका नाम टाइप करके रख दिया, कंट्रोल एडिट कंट्रोल V, राइट। तो क्या हो गया, इसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया। इसीलिए शब्द कुछ कुछ रह गए गीता के, लेकिन वो सब आवृत्तियों के अंदर, वो सब सत्संग के अंदर जो एसेंस ऑफ द भागवत गीता है वो डिस्प्लेस हो गया या वो निकल गया। फिर वो अपने पंथ संप्रदाय को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हमने वो सब अपने हिसाब से अंदर ऐड कर दिया। सो उस गीता का कुछ फायदा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट टीचिंग है जो भगवान ने अर्जुन को दिया या जो भगवान ने महाराज विवस्वान को दिया था सूर्यदेव को, वही ट्रांसपेरेंट टीचिंग कैन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये गुह्य ज्ञान है, राइट। इट्स अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल येट वेरी ओपन सीक्रेट येट इट इज the great knowledge. So transparent teaching of the transcendental knowledge can only do the transformation of the heart. आपके हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आपने जो भगवान ने सुनाया वही अपने कानों के जरिए सुना और अपने जहन में उतारा। अगर बीच में मैंने कुछ चेंज कर दिया तो भगवान की वाणी जो आपके कानों के अंदर जा रही है वो एडल्ट हो गई, यानी फिर वो मेरी वाणी बन गई, एंड दैट वोंट मेक एनी ट्रांसपोर्टेशन। सो द ट्रांसपेरेंट टीचिंग of the transcendental knowledge can only do the transformation of the heart. इसीलिए मैंने एग्जांपल देखा कि if you have seen when Prabhupada came in United States, he came single-handed with one suitcase, with 2 pairs of clothes and 1 Bhagavad Gita, right? And around $5 something like that. He don't have anyone with him. Neither he has any connection, neither he has any support. कुछ नहीं था उनके पास। सेकंड एवेन्यू, जिसे कहूं कि कलयुग का सबसे कलयुग का डाउनटाउन, यानी वहां पे ऐसे लोग रहते थे who were hippies. वो सुबह शाम चरस गांजा LSD सेक्स एवरीथिंग, दे डोंट हैव एनी रूल्स। दे आर द पीपल लिविंग ऑन द सेकंड स्ट्रीट इन यूनाइटेड स्टेट्स इन न्यूयॉर्क, राइट। प्रभुपाद वहां पे अवतरित हुए और वहां पे उन्होंने क्या किया, सिंपल भागवत गीता एज इट इज की क्लास चालू की। उनकी उनकी जो, अगर आपने सुना होगा प्रभुपाद को, तो हिज टोन इज वेरी हैवी, ही हैज अ बंगाली एक्सेंट, हिज टोन इज वेरी हैवी, ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज 67 ईयर ओल्ड, तो आधी चीज समझ में नहीं आती है। बट स्टिल वॉट एवर ही वॉज स्पीकिंग, he was not speaking to the person, he was speaking to the heart or the soul of that person. So transformation is easily happening because जो transcendental knowledge वो दे रहे थे उन peoples को, उन hippies को, they were transparent. जब भगवान चाहे आपको चेंज करना तो क्या आप चेंज नहीं हो जाएंगे? सेम थिंग, ये भगवान की वाणी है जो कहाँ 5000 साल पहले से चली आ रही है। इफ इट इज ट्रांसपेरेंट, अगर वो गुरु परंपरा से आई है ऑथेंटिक वे से, देन यू आर गेटिंग एज इट इज व्हाट अर्जुन हैज गिवन एट दैट टाइम, राइट। सो गुरु परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान ने कहा कि परंपरा छिन्न हो गई, अर्थात
विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया। सो अगर परंपरा के अंदर अल्टरेशन आ गया, लोग अपना मोटिव ऐड करने लग गए, सो देन परंपरा इज डिस्ट्रॉय, द चेन of transparent knowledge is destroyed, and that's the reason you are not getting the authentic knowledge, right? एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, इज लाइक अ डिक्टाफोन। प्रभुपाद को किसी ने कहा था कि प्रभुपाद यू आर नॉट टेलिंग समथिंग डिफरेंट, यू आर टेलिंग वॉट एवर योर गुरु हैज सेड। तो प्रभुपाद ने उसको हाथ जोड़े, बोले थैंक यू वेरी मच, दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन एवर गेट, दैट इज व्हाट आई वांटेड, आई वांट टू बी लाइक अ डिक्टाफोन और अ स्पीकर who can just speak whatever is been feed by his guru or the guru parampara, right? Devotees in New Vrindavan, I remember this incident. There was a devotee in New Vrindavan, he don't know how to give a class. उसको भागवत गीता के बारे में क्लास देना नहीं आता था, लेकिन एट द टाइम कोई था नहीं, बिकॉज इन इस्कॉन देयर इज अ ट्रेडिशन दैट एवरी मॉर्निंग आफ्टर श्रृंगार आरती देयर इज अ भागवत गीता क्लास और श्रीमद् भागवतम क्लास। सो उसको कुछ नहीं आता, उसने क्या किया, फोन नीचे छुपाया और वहां से कनेक्ट करके एक यहाँ पे हेडफोन लगा दिया, एंड देन व्हाट ही वाज डूइंग, जैसे जैसे प्रभुपाद बोलते हैं उसी को सिर्फ रिपीट कर रहा है वो, पॉज ऑन पॉज ये करके, and then he is getting pause also because he is listening what Prabhupada says and then he is repeating. So when he finished the class, people say that you give very professional lecture, you are giving pause where it is needed and you are talking exactly fantastic, people like it. And then he says that actually I was listening what Prabhupada was saying and then I was repeating the same thing. Actually that is what has to be done in the Guru Parampara. He don't need to put his own thought, he has to just repeat what Krishna has said to Arjuna, and then after Vedvyasji, then Devarshi Narad, and then it came like that. Sorry, Vyasdev, and then it comes into the Mahabharata and to all the Guru Parampara, right? Hope this is clear. So again, वापस से हम repeat करते हैं श्लोक को कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा। कौन सी विधि? गुरु परंपरा की विधि से। तो पहले गुरु कौन थे? विवस्वान के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, गुरु परंपरा लॉस्ट हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट दिस नॉलेज, क्योंकि अर्जुन के पास भी ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि गुरु परंपरा चली गई तो ज्ञान लुप्त हो गया। अर्जुन डजंट हैव दिस नॉलेज, अदरवाइज ही वुड नॉट आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे भगवान वापस से उस चीज को रीराइट कर रहा है, फॉर हुम? फॉर अस टू गेट इट, right? Moving to the next one, 4.3. Sa evayam okay. Sa evayam maya tedya yogah prokta puratanaha bhakto si me sakha cheti rahasyam he etad uttamam। भगवान क्या कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यहाँ पे जो मेन चीज है, भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है मैं वापस तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे जरिए आगे लोगों को कहा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इसे क्यों बता रहा हूं, क्यों तुम इसे समझ सकते हो? भगवान कह रहे क्योंकि अर्जुन तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो। So this is very important part. If someone wants to read this line, this paragraph. Yes, I will read it. There are two classes of men, namely the devotee and demon. The Lord selected Arjuna because a devotee of the Lord, but sorry, just 1 minute. Yeah. Arjuna, being a devotee of the Lord, sorry, I'm getting a call. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book. Some of them have commentaries by the devotees and some of them have commentaries by the demons. Commentations by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjun accepts Sri Krishna as the supreme personality of Godhead, and any commentary on the Gita following
in the footsteps of Arjun is real. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct Something. something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic successions from Arjun and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. Very nice. So भगवान ने क्या कहा कि it is very important you will understand the reason is you are devotee and the friend. So प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे मैंने पहले भी इसमें हमने डिस्कस किया कि there are two kind of categories of the people who give the Bhagavad Gita narration or who write about the Bhagavad Gita, who write the commentary about the Bhagavad Gita. One is the devotee and second is the demon. The definition of demon यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये कृष्णा को एज इट इज स्वीकार नहीं करते, कृष्णा को भगवान नहीं मानते, या कृष्ण सोचते हैं कि इज अ हीरोइक कैरेक्टर प्रॉब्ली व्हिच इज बीन ओवररेटेड, ही माइट हैव सम सुपर पावर. जैसे दुर्योधन कहता था कि वो मायावी है, वो भगवान नहीं है, ही इज अ मायावी, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल पावर एंड ऑल दिस थिंग्स बट ही इज नॉट अ मायावी. तो भगवान ने उसको फिर जब भगवान संधि करने गए तो उससे अपना विश्व रूप भी बताया, तो भी उसकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है क्योंकि ही हैज अ डेमोनिक नेचर, ही इज नॉट वांट टू एक्सेप्ट. वहां पे बैठे हुए पितामह भीष्म, महर्षि व्यासदेव, विदुर, ये सब नतमस्तक हो जाते हैं, द्रोणाचार्य, ये सब कि अरे भगवान का विश्व रूप दर्शन करने का हमें मौका मिला. लेकिन वही चीज जब दुर्योधन को मिली तो बिकॉज हिज सेंसेस आर नॉट प्योरिफाइड, ही इज अ डेमोनिक पर्सन, सो ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट आल्सो. अच्छा ये तो कोई इसने जादू किया होगा, ही डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. अब ऐसे इंसान जब भगवत गीता के बारे में कमेंट्री लिखेंगे देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द सेम थिंग. आपको बोलते ना, खीर कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप्स केरोसिन के या पेट्रोल के डाल दिए जाए तो व्हाट विल हैपन. सिमिलरली the people who is not a devotee, who is not a bhakta, who is not coming in the disciplic succession, अगर वो जब भगवत गीता के बारे में कमेंट्री लिखते हैं, so what you will get, you will get a kheer in the sense but it has the injection of the kerosene or petrol. और प्रभुपाद कह रहा है यहाँ पे, इसीलिए भगवान कह रहा है कि भगवान गिविंग सच अ वार्निंग फॉर द मिसलीडिंग पाथ कि इफ यू फॉलो दोस थिंग यू विल बी लॉस्ट, राइट. और शैलेश प्रभु आपका जो क्वेश्चन था वो इसी से कनेक्टेड है. we'll take this one. So यहाँ पे जो example दिया गया कि two kind of people, right, demoniac and devotees, they perceive the Bhagwan in a different way. We'll come to your question, or actually we can take it now because it is connected. या आपका क्वेश्चन था कि प्रभु एक होने से भगवान एक હોવા છતાં જુદા જુદા મનુષ્યોને જુદી જુદી રીતે સાથી અનુભવાય છે. Why the God is one, but why he is been experienced by the different people differently. So देखिए हमारे पास क्या है, इंद्रिया है, right? So the indriya is material senses and spiritual senses, right? So for the भौतिक अर्थात जो material senses है, the perception is under the illusion, right? People try to perceive Krishna with two kind of things. One is the material senses and one is the spiritual senses, right? The people who is spiritual can only take a spiritual senses. The people who is materialistic, they have only material senses. Say for example, Duryodhan, उसके पास आध्यात्मिकता का बल था ही नहीं, उसके पास आध्यात्मिक इंद्रिया थी ही नहीं. So he is trying to perceive Krishna from his material senses. So उसका जो perception था भगवान के लिए वो under the illusion था. इसीलिए वो भगवान को क्या समझता था, ऑर्डिनरी पर्सन, सुपर ह्यूमन, ओवररेटेड हीरोइक कैरेक्टर, सम मायावी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सिमिलरली द पीपल इन दिस वर्ल्ड like us, like me, who has a material senses, who cannot perceive Krishna as it is. So what they will write it, although what they will explain, he might be some heroic character, might be some superhuman, when they write about the commentary of Bhagavad Gita. That's what Prabhupada said. तो यहाँ पे जब ये लोग भगवान को देखेंगे with the material senses, they are under the illusion. वो इल्यूजन से भगवान के दर्शन अलग अलग तरीके से करेंगे. और एट द एंड भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो मेरे को स्वीकार नहीं कर सकता एज अ भगवान, मैं उनको भी मिलता हूं, लेकिन किस तरीके से, काल के तरीके से. मैं काल बन के आता हूं और उनका सब कुछ छीन लेता हूं. किस तरीके से, डेथ के तरीके से. आई विल मीट देम एज अ डेथ, right? You don't want to accept me in any way, okay, then you will accept the death, you're going to die also, right? So I'll come as a death to take you out.
right? So that is the people who will see Krishna with the material senses. There is a adhyatmic indriya also, spiritual senses. इनके अंदर जो भगवान का परसेप्शन है वो इल्यूजन में नहीं रहता है. though it could be incomplete इसलिए क्योंकि ये जो इंसान है, ये जो भक्त है, भगवान के लिए उनके पास स्पिरिचुअल सेंसेस तो है, लेकिन वो भगवान से रिलेशन के कारण, भगवान से अपने रसा के कारण वो भगवान को अपने रस की दृष्टि से देखते हैं. आप समझ रहे हो? भौतिक इंद्रिय वालों को तो निकाल दो, लेकिन जो भक्त हैं, भक्त भी भगवान को their senses is not under illusion. उनके पास स्पिरिचुअल सेंसेस है, लेकिन फिर भी वो भगवान को एज इट इज नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो भगवान को, उनके साथ जो रिलेशन है उनका, जैसा वो रस एक्सचेंज कर रहे हैं भगवान के साथ, वो भगवान को उसी तरीके से देखना चाहते हैं. दैट्स द रीजन आपने जो पूछा ना कि भगवान एक होते हुए भी वो हर एक मनुष्य को अलग अलग तरीके से अनुभव में आते हैं. वो भक्त हैं, उनको भगवान अनुभव में आते हैं, लेकिन किसी को बालक के स्वरूप में अनुभव में आते हैं, किसी को सखा के स्वरूप में, या किसी को प्रेमी के स्वरूप में, या किसी को पिता के स्वरूप में, किसी को स्वामी के स्वरूप में, राइट? क्योंकि बेस्ड ऑन द रसा दे हैव डेवलप्ड थ्रू द डिवोशनल सर्विस, उनको वो उस तरीके से प्रतीत होते हैं, राइट? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो उन्होंने भगवान से क्या कहा? भगवान से क्या कहा कि प्रभु कहा कहू छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नभ तू है, धनुष बाण लियो हाथ. अर्थात प्रभु आपकी छवि की क्या बात कहूं, बाकी बिहारी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कहा कहू छवि आज की, भले बने हो नाथ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पर तुलसी मस्तक नभ तू है, मेरा मस्तक झुक जाएगा अगर आप एक बार धनुष बाण हाथ में ले लो. तो बिहारी जी ने धनुष बाण हाथ में ले लिया. तो देखिए, उस तुलसीदास जी को भी पता है ये ठाकुर जी है, ये रघुनाथ जी है, पर उनका जो रस क्या है, ठाकुर जी के प्रति राम भाव है, राइट? तो भगवान को राम तरीके से देखना चाहते हैं, इसलिए ही इज नॉट एबल टू, ही विल सी कृष्णा फ्रॉम हिज ओन परसेप्शन, राइट? इट इज नॉट अंडर इल्यूजन, बट इट इज लिमिटेड, क्योंकि भगवान को सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं. जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी तीन जैसी. क्योंकि भगवान को सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि अनंत देव भी, जो शेषनाग है, जो भगवान जिसके ऊपर लेटे हुए, अनंत देव भी अपने अनंत जिह्वा से, अनंत काल से भगवान के अनंत गुणों का वर्णन किए जा रहे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट फिनिश्ड. ही ऑल्सो डोंट नो भगवान 100%. So forget about anyone else, right? So everyone will reciprocate with Bhagwan through his own rasa, and Bhagwan reveal himself in the same particular manner. Is that answer your question, Prabhu? यस प्रभु, एकदम परफेक्ट. जय जय. Very nice. So ये हमने दिया ना 4.3. सो प्रभु, सो माता यशोदा भी वो तीसरे उसमें ही आएंगी क्या, कि वो अपने हिसाब से मतलब भगवान को देखती थी, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ. जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया माता को मुंह के अंदर, सॉरी, ब्रह्मांड दिखाया माता को अपने मुंह के अंदर, तो माता बेहोश हो गई. अरे मेरे लाला के मुंह में क्या अलाई बलाई आ गई. He cannot take it because he take Krishna as a baby only, right? So वो माता भी भगवान को सिर्फ बालक स्वरूप में ही देखना चाहती है. He don't want to accept Krishna as the विराट स्वरूप, कि उसके अंदर भी ब्रह्मांड हो सकते हैं. नहीं, मेरा कान्हा है ये तो. Though technically she knows that he is a god, but she cannot reciprocate Krishna with that swarup. She only want to reciprocate Krishna with a lalla, means Bal Gopal, and that's what she has asked. जब उन्होंने तपस्या की थी कुछ तो 65,000 ईयर्स तक उन्होंने, नंद बाबा ने, तो माता ने उसको यही बोला था कि मुझे आपके बाल स्वरूप का ही लाभ लेना है, आपके बाल स्वरूप का ही भक्ति करनी है, राइट? So she don't want to reciprocate in any other form with Krishna. For him, she is a lalla only. He want to have Bal Gopal only. So इसीलिए भक्तों के पास स्पिरिचुअल सेंसेस रहती है, वो इल्यूजन में नहीं रहते हैं, बट फिर भी वो भगवान का लिमिटेड एक्सेस करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन रसा. That's what that श्लोका of भागवत, श्रीमद् भागवतम जो शैलेश प्रभु ने कहा, उसका मतलब है. Is that answer your question? जी प्रभु. Okay, we'll move into the next one.
स एवायां माया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतादुत्तमम। कि आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग परमेश्वर ये तो हमने कर लिया, सॉरी 4.3 4.4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीया त्वमादो प्रोक्त्व वानिति। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। बहुत सही बात, क्योंकि जब ये डिस्कशन हो रहा है भगवान कृष्ण करीबन 114 या 120 साल के थे when he is having this discourse with Arjuna on the battlefield of Kurukshetra। तो अर्जुन ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि प्रभु आप बताइए हाउ इज दैट पॉसिबल, आप तो मेरे सामने खड़े 114 साल के, समथिंग लाइक दैट, और सूर्य देव तो कितने हमें लग जब से पृथ्वी की रचना हुई, जब से संसार बना तब से है, तो उस समय आपने भगवान सूर्यदेव को कैसे ये ज्ञान दिया, वो तो बहुत ज्येष्ठ है, बहुत बड़े हैं। तो अर्जुन ने ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछा हम सब के लिए, क्योंकि ये भगवान के बारे में ज्ञान है ना। दिस 4 to 10 इज एक्चुअली अ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट द गॉड ऑफ कृष्णा। सो अभी आगे भगवान उसको समझाएंगे। ये अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा हाउ कम इट इज पॉसिबल। तो 4.5 में भगवान कहते हैं कि श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। वी हैव टेकन बर्थ सो मेनी टाइम्स। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर, राइट? सो अगेन इफ यू वांट टू रीड दिस वन। Yes, I will read it. Yeah. The difference between the part and parcel living entity and the Supreme Lord, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature, we may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his सच्चिदानंद Sachidanand body. He is Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical. वेरी नाइस, थैंक यू तरीशा जी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद की द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम लॉर्ड। ये भगवान ने डिफरेंस दिया कि देखो अर्जुन, तुम और मैं बहुत बार इस संसार में आ चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रह सकता, राइट? क्योंकि हम और भगवान क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। क्वालिटेटिवली सेम है बट क्वांटिटी, अर्थात कि अगर एग्जांपल दे तो हम सोने की एक अंगूठी है और ठाकुर जी सोने की खान है। क्वांटिटेटिवली क्वांटिटी में है छोटा सा सोना है हम, लेकिन भगवान सोने की पूरी खान है। क्वालिटेटिवली वी आर सेम। सो हम पार्ट एंड पार्सल, जैसे एक बच्चा है वो बाप की क्वालिटी वाला ही रहेगा, लेकिन ही इज अ किड, सो क्वांटिटेटिवली जो स्ट्रेंथ है फादर की वो बच्चे में नहीं रहेगी। देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी, दो क्वालिटी इज सेम। सो द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम, हम भगवान के ही अंश है। डिस्पाइट द फैक्ट बोथ कृष्ण एंड अर्जुन आर इटर्नल इन नेचर, दे बोथ आर इटर्नल। वो भी बहुत बार आए हैं, कृष्ण ही बहुत बार आए हैं, अर्जुन भी बहुत बार आया और कृष्णा ही बहुत बार आया है। We may also note here in that a living entity forgets everything due to his change of the body. हम हर बार जन्म लेते हैं, हम पिछले जन्म का भूल जाते हैं। चलिए वो तो छोड़िए, अगर कोई मुझे पूछे कि पिछले साल मैंने इस दिन क्या खाया था, हम वो भी याद नहीं रख पाएंगे। फॉरगेट अबाउट पिछले साल, बोलेंगे पिछले महीने हमने आज के दिन क्या खाया था इस तारीख को, हमें याद नहीं रहेगा फटाक से, because that is what our issue with the changing of the body. But the Lord remember everything because he does not change his कैसी बॉडी, सत चित आनंद,
उनकी जो बॉडी है वो चेंज नहीं होती. ही इज अद्वैत. अद्वैत मीन्स विच डजंट हैव अ डिफरेंट बॉडीज. ही इज वन. उनकी स्पिरिचुअल बॉडी है, हमारी मटेरियल बॉडी है. हम बार बार हमारा स्पिरिट चेंज करता है बॉडी, और उस मटेरियल बॉडी को हम डंप कर देते हैं, जला देते हैं या बरीड कर देते हैं, वॉट एवर इट इज. लेकिन भगवान का जो शरीर है वो स्पिरिचुअल रहता है, वो एक है. ही इज अद्वैत, राइट. दैट मीन्स उनका मैटर और स्पिरिट दो से उनकी बॉडी नहीं बनती है. उनकी बॉडी सिर्फ 100% स्पिरिट से ही बनती है, मीन स्पिरिचुअल है, right? That's the reason he don't need to change the body. That's the reason he never changed the body. He is Advaita. Moving to 4.6. Prabhu, I have a question here. Yes. So then how Krishna has the age, as you said, like he was 112 or 115 years, where if his body is not changing, like he has one body, then how he aged, and then again he get a new body, or like what happens? How then the age should not be there? Yes. एक एग्जांपल लीजिए आप. मैं आपको कृष्णा की कथा सुनाता हूँ, पूरा महाभारत या पूरा भागवत, श्रीमद् भागवतम. उसमें भगवान को सिर्फ मैं 6 साल का बालक ही दिखाता हूँ, और भगवान जाते हैं कुरुक्षेत्र में 6 साल का बालक बन के, अर्जुन के सारथी बन के. वुड दैट फिट इनटू द ड्रामा? इट वोंट फिट. he can go from 12 feet of height to the Vishwaroop. Same thing. So his body is spiritual. He can extend his body or shrink his body the moment he wanted. But it doesn't mean that he has to be in the one body. Body changing in the sense, it doesn't mean that you cannot increase or decrease the size of the body. You are thinking that way. उन्होंने वही अर्जुन को युद्ध भूमि पे ही अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसके अंदर पूरा आर्मी जा रहा है भगवान के मुख में. सूर्य चंद्र दिख रहे हैं उसके अंदर. एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंदर जा रहे हैं. भगवान इतने एक्सटेंट तक अपनी बॉडी को ले जाते हैं. और वही वापस से जब अर्जुन डर गया तो भगवान उसी बॉडी को वापस से वही 12 फुट की अर्थात 120 साल की बॉडी में लेके आते हैं. वही भगवान चाहे तो इमीडिएटली उसको एक नवजात शिशु के रूप में ले जा सकते हैं. That is the matter about it. It's not by the age he's changing the body. His body is not changing based on the age. His body is changing based on the demand of that लीला. उस लीला की डिमांड के हिसाब से उन्होंने बॉडी अपनी चेंज की. जब बाल लीला का सुख देना था यशोदा माता और नंद बाबा को, तब वो बच्चे बने रहे. जब यौवन का सुख देना था सब गोपियों के साथ, सब सखाओं के साथ, तब वो पुख्त वय के हो गए. जब उन्होंने सुख देना था अर्जुन को सखा के स्वरूप में, एक मार्गदर्शक के स्वरूप में, एक सारथी के स्वरूप में, तब भगवान बन गए अपने 12 फुट के एकदम फिट एंड हैंडसम पर्सनालिटी. सो ही चेंज हिज बॉडी वेन एवर ही वांटेड. और जब अर्जुन को दिखाना था अपना विश्व स्वरूप, अनंत स्वरूप, तब भगवान बड़े हो गए, इतने बड़े कि असीमित. सो उनकी बॉडी इज नॉट चेंजिंग बेस्ड ऑन द एज. हिज बॉडी इज चेंजिंग बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द लीला और नीड ऑफ द रसा. Is that answer your question? Yes, Prabhu. Okay. यद्यपि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ, सॉरी, अजोपि सन अव्ययम भूतानाम ईश्वरोपि, I cannot read. Okay. अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अभिष्ठाय संभवामि आत्ममाया. कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं. यहाँ पे व्हाट भगवान इज सेइंग कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मैं कभी जन्म नहीं लेता, ना मैं कभी मरता हूं, अविनाशी हूं, फिर भी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं. आई एम द मास्टर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी. तो भी प्रत्येक युग में, हर युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं. हाँ, अपने आदि मीन्स अपने रियल फॉर्म में प्रकट होता हूं. राइट. अब यहाँ पे 4.5 और 4.6 का जो परपेट है उसका कंपैरिजन यहाँ पे इस चार्ट में दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस. राइट. तो एक तो कृष्णा कौन है? इटर्नल है, रिमेंबर्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वो अच्युत है. लेकिन हम इटर्नल है, हम भी इटर्नल है, हम भी अनंत हर बार आते रहते. वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड. बट प्रॉब्लम इज ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, वी फॉरगेट्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द बॉडी.
right? Second is Krishna remember all the birth because the body does not change or deteriorate, right? We forget because our body changes and deteriorate. हमारी body change होती है और नाश भी होती है. Third is वो अपने आप प्रकट होते हैं जब उनकी इच्छा होती है, इसलिए कहते हैं वो अवतरित होते हैं. He descend. वो अपने आप इस भूमि मंडल पे प्रकट होते हैं जब उनकी इच्छा होती है, जब वो आना चाहते हैं. लेकिन हम फोर्स टू अपीयर. हम क्यों इस संसार में आते हैं? अपने कर्म के हिसाब से. हम कर्मों का भुगतान करने के लिए संसार में आते हैं. वी आर फोर्स टू अपीयर. ही डिसेंड. ही कम ऑन हिज ओन विल. वी आर फोर्स टू अपीयर. फोर्थ इज उनकी बॉडी ट्रांसीडेंटल है, हमारी बॉडी मटेरियल है, बिकॉज इट्स मेड ऑफ द मैटर फ्रॉम दिस प्लैनेट, एंड हिज बॉडी स्पिरिचुअल इज ट्रांसीडेंटल, राइट? एंड द फिफ्थ इज उनकी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो बॉडी एंड सेल्फ सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. ही इज अद्वैता. ही इज वन स्पिरिचुअल फॉर्म. Why we have the soul acquire the external body, right? And then the soul sit inside the subtle one. So हमारे पास तो actually दो body है. Outside जो body बनी है जिससे हम देख सकते हैं हाथ पैर आंख मुंह, that is called the भौतिक body, material body, which is made of the 5 elements. उसके अंदर एक छोटी body है जिसे subtle body कहते हैं. उस subtle body के अंदर soul fit रहती है. जब इस material body का नाश हो जाता है तो ये subtle body जो है वो हमें इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाती है. इट्स लाइक अ स्मॉल स्पेस यूनिट जो ट्रांसफर करता है. सो यू हैव 2 बॉडीज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ये श्लोक सबने सुना होगा अपने जीवन में. दिस 2 श्लोक्स. Prabhu, I have a question in before 4.6. Yes, go ahead. So he said that मैं हर युग में अपना जो है विराट रूप का दर्शन कराता हूँ, ऐसा कहा भगवान ने. नहीं, ऐसा नहीं कहा भगवान ने. He says I'll come in his my own form. विराट स्वरूप तो उसने अर्जुन के ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिया था. When Arjun has asked all these questions, तो भगवान ने कहा ठीक है, then I want. अर्जुन ने कहा कि मुझे अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराइए प्रभु, अगर आप मेरे पे खुश है तो. तब भगवान ने उनसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए कि दिस इज व्हाट माय मटेरियल फॉर्म आल्सो, जिसमें पूरे संसार को चलाता. चाहे मैं तुम्हें दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ, लेकिन एवरीवेयर इट इज मी. और इसीलिए इसी का एक एग्जाम्पल है जब खाटू श्याम, इट इज नॉर्थ पीपल वर्शिप हिम अलॉट. खाटू श्याम विच इज गटोरगज के जो पुत्र हैं, उनका सर काट के रख दिया था. दैट इज अ डिफरेंट कथा. एंड ही हैज अ डिजायर टू ऑब्जर्व द एंटायर वॉर. तो जब वॉर खत्म हो गया तब पांडवों के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि हु इज रियल मैन ऑफ द मैच, कौन है, समथिंग लाइक दैट. देन दे वेंट एंड सेड ओके लेट अस आस्क खाटू श्याम, जो गटोरगज के बारबरिक जिनका नाम था. आप खाटू श्याम के नाम से फेमस हो गए, बट उनका नाम बारबरिक था. कि भैया बारबरिक को जाके पूछते हैं कि हु इज द रियल मैन ऑफ द मैच. तो बारबरिक ने कहा कि मैं तो किसी को देखा ही नहीं लड़ते हुए, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि कृष्ण ही है हर जगह पे और ही इज डूइंग एवरीथिंग. सो इन द सेंस भगवान ने यही अर्जुन को बताया अपने विराट स्वरूप पे कि यू जस्ट डू द एक्ट सेक ऑफ एक्टिंग, क्योंकि ये जितना मैंने निर्धारित किया है ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं. यू आर जस्ट प्लेइंग योर ओन रोल. तो अर्जुन की ये इच्छा थी उस विराट स्वरूप को देखने के लिए, इसलिए भगवान ने उस विराट स्वरूप को प्रकट किया. गो अहेड. हेलो, you there? Yes, Prabhu. Yes. Yes, Prabhu. So if you go back 2 slides, Prabhu. So यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ. So it doesn't mean that he is going to show the Adi Divya Roop in every yug, like when he is coming here. नहीं, आपने मिसइंटरप्रेट किया. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आदि दिव्य रूप? अगर आप उसे अलग करें, आदि मीन्स द ओरिजिनल, राइट? दिव्य मीन्स द ट्रांसीडेंटल, रूप मीन्स द स्वरूप. सो भगवान कृष्ण आए ना अपने आदि दिव्य रूप में. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवम. और उन्हें क्या भगवान ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. That's what is the Arati, right? He is the Adi Purush, Govindam. He appeared. Every yuga he will appear, right? In his Divya Roop. Divya Adi Roop.
He didn't mention that. He didn't say I come in, I show my in my Virat Swarup. Virat Swarup is just his external form. He is there in that form. अर्जुन को देखना था वो विराट स्वरूप, इसलिए उसने दिखाया. He don't come in a विराट स्वरूप, otherwise how we gonna handle him? हम उनको खाना कैसे खिलाएंगे? हम उनके साथ खेलेंगे कैसे? How is gonna sit on the chariot? Virat Swarup is not beyond the perception for the normal dealings, right? Yes, Mamta Bhabi, you have raised the hand. We cannot hear you. One sec. Can you hear me now? Yes, please go ahead. Okay, yeah. प्रभु, जैसे आपने बताया कि प्रभु जो है अपने हर एक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं. सो ये जो कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग में उनकी वो प्रकट हुए, हम मान सकते हैं कि he is there live in this कलयुग. It is a part of the question actually. It is there in next slide. It is coming. Okay. Yeah. Okay. It is coming. Okay. Yeah. Fine. Yeah. So Megha, you understand? So उनका आदि दिव्य रूप is not the Virat Swarup. उनका आदि दिव्य रूप, which is in the spiritual world, it is Murli Manohar. It is Govindam. Right? Govindam Prabhu. Adi Purush. Right? Okay. Yes, yes, yes. So 4.7, 4.8. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyudhanam adharmasya tadatmanam smijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये. पहले 4.7 में भगवान क्या कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं. अब इफ एनीवन कैन गिव मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द धर्म, यहाँ पे भगवान ने कहा कि जब जब धर्म का पतन होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म? रोहित प्रभु. This everyone can try this thing, right? आपके अंदर, आप बचपन से जब से आप बड़े हुए, who is Kash? Raise hand. Kaushal, go ahead. Yeah, my name is Kashyap. Yes, please go ahead. Yeah, so what I think is basically dharma means doing what is right. What is right? Okay, one point. We'll discuss that as well. Yes, another part. You just can go ahead. You don't need to raise the hand. Please go ahead. Okay. धर्म means we are following our धर्म जो अपने बाप दादाओं से चला आता रहा है, you know, the spiritual, the tradition of doing puja, aarti and all that thing, day to day practice of our worshipping the Lord is the dharma. Okay, that Prescribed is one. duty? Who is that? That's me, Pragya. Dharma means prescribed duty. Yes, that is one answer. Anyone else want to give answer? Duty. What duty? Hiren Prabhu. There's the set of rules that we need to do. Based on what? Based on, suppose if I'm a father of say some son, then I have some predefined duty that I need to do. Okay. You're talking about ashram. Yes. That is half Like correct everything is answer. Yes. Yeah, like everything is predefined. Like suppose if I'm a father, then I need to do some of the duties. It's also one type of dharma only. Yes, it is a kind of dharma. You're right. Yeah. I mean, religious and the moral duties towards your life or towards your family and simultaneously doing your religion practice. Okay. Anyone else want to say, or I can start? किसी और के दिमाग कुछ ख्याल है? They want to share something, their thought? Yes, go ahead. Okay, so पहला श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, राइट, अधर्म बढ़ने लगेगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा, भगवान ने कहा. यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म.
जैसा प्रज्ञा माता जी ने कहा। वर्ण अर्थात आश्रम से उत्पन्न हुई जो ड्यूटी है, जैसे हिरण प्रभु ने कहा। हिरण प्रभु की एग्जाम्पल ऑफ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास, उसके धर्म बताए गए। द ड्यूटी आउट ऑफ दैट आश्रम, देयर इज अ ड्यूटी आउट ऑफ द वर्ण। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है। सो वर्ण एंड आश्रम के जो कॉम्बिनेशन से जो उत्पन्न होता है उसे कहता है वर्णाश्रम धर्म। दैट इज व्हाट कृष्णा मेंट हियर, राइट। भागवतम कहता है कि द गोल ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज टू develop the attachment towards Krishna. Otherwise, it is श्रम एव ही केवलम। अर्थात ये जो आप वर्णाश्रम कर रहे हो, it is just a श्रम एव ही केवलम। वेरी वेरी सब्लाइन स्टेटमेंट। देखिए, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है या अभी का जो अपब्रिंगिंग है, जो हम अपने बेटे को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, हाउ वी लर्न, what we do is study, get this mark, get scholar, get the admission, get the highest college, get the top class institution, get the best job in the town, get the best job in the society. Then what you will do? Get the best salary. Then what you will do? Okay, if you get the best salary, you can get the nice bungalow, you can get the nice car, you can live like a king size life, all this thing. At the bottom, what it comes is just for the extension of the sense gratification, how better you can gratify your sense, right? That is what the baseline of right now the varnashram. अर्थात आप भी अपने बेटे, आपका जैसा हिरण प्रभु ने कहा कि what is your role as a father or the mother, right? You give a typical or the spiritual knowledge to the kids so they can understand this varnashram dharma properly. They can understand that this is meant for me to live on this planet, but the bottom or the center goal is to get spiritual, to get advancement and get out of this birth and death. Rather than if we teach our kids just okay, work, earn, and then what will happen? Die. So उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। क्या किया? जितना भी उसके पास रिसोर्सेस थे, वॉट एवर ही हैज अ रिसोर्सेज, वॉट एवर भगवान ने उसको रिसोर्सेज दिए, वॉट एवर द एनवायरमेंट प्रोवाइड हिम द रिसोर्सेज, उसने यूटिलाइज किसके लिए किया? सिर्फ अर्निंग के लिए, एंड फॉर दैट अर्निंग, फॉर द सेक ऑफ एंजॉइंग मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स ऑल। इसलिए भागवत कहता है कि द गोल ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज टू डेवलप द अटैचमेंट फॉर कृष्ण। अदरवाइज इट इज जस्ट श्रम एव ही केवलम। वो सिर्फ श्रम है जो आपने जीवन भर एक गधे की तरह काम किया, पैसे बचाए, खाया और फिर मर गए। दैट्स व्हाट यू हैव डन, यू जस्ट डिड श्रम एव ही केवलम। तो भगवान ने कहा कि जब जब इस धर्म का पतन होगा, पीपल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर डूइंग अधर्म, दे विल फॉल डाउन व्हाट दे सपोज टू डू, भगवान विल कम एंड अपलिफ्ट यू। ममता जी, आपका क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, whether he comes in the Kalyuga or not. I am coming into that. Okay. So, और आगे भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, मैं किसकी रक्षा करने के लिए? साधुओं की रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापना था, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। आई विल कम युगे युगे, आई विल कम इन एवरी युग। नाउ दिस 4.8 विल अगेन चेंज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। सो धर्म जैसे हमने समझा, एज पर द वर्णाश्रम धर्म इज द धर्म विच इज कम आउट ऑफ वर्ण एंड आश्रम, राइट? सो अप टू द कलयुग देयर वाज वर्णाश्रम धर्म वाज परफॉर्मिंग वेरी प्रॉपर्ली। इंसान को, ब्राह्मण को पता है कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को पता है क्षत्रिय को क्या करना है, क्योंकि वो राज ऋषि थे। उनको पता था कि हाउ दे शुड रूल द प्लैनेट और रूल द किंगडम सो दैट एवरीवन कैन गेट एडवांसमेंट आउट ऑफ द वर्णाश्रम धर्म, दे कैन लिव देयर लाइफ हैप्पीली। उनके पास डिसेंट टाइम बचे जिसमें वो भक्ति में अपने आप को और अपने परिवार को लगा सके। वो काम इतना ही करना है जितना कि वो अपने और अपने परिवार का पोषण कर सके और साधु भी भूखा ना जाए। He don't need to work for only for the sense gratification or for the future of our kids, कि ताकि वो और अच्छे से रहे, और अच्छे से रहे, right? That is what we are doing, but that is not how it's supposed to be. And that's the reason dharma was been followed very nicely till Kali Yuga. फिर भगवान ने धर्म की व्याख्या कलयुग में चेंज कर दी, right? क्योंकि धर्म क्या है?
धर्म तो साक्षात भगवत प्रणेत, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। धर्म क्या, जो भगवान समझाए। तो जब कलयुग में भगवान आए, राइट, कलयुग का जो सिचुएशन है, कलयुग के सिचुएशन में वी आर नॉट एबल टू फॉलो एनीथिंग प्रॉपरली, नेदर the people are following their prescribed duties, neither the varna is performing the way they're supposed to perform, so everything is destroyed, everything is, you know, cluttered. There is no way you can get out of it. So then धीरे धीरे भगवान ने क्या किया, कलयुग में आया और क्या किया, he says that, you know, now everything is done, it's very difficult for me to correct you, rather you try to be as much as you perfect, but then you take the method of devotion. इसीलिए भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। व्हाट ही सेड, ही सेज दैट हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। कि कलयुग का धर्म क्या है, युग धर्म क्या है, इज जस्ट चांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। आप ये करो एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। जैसे कोई एक कक्षा रहती है ना, जिसके अंदर कुछ अगर एक या दो बच्चे खराब हो तो देन यू ट्राई टू वर्क ऑन देम, यू ट्राई। जब कक्षा के अंदर 99% लोग वो बोलते हैं ना गॉन केस रहते हैं, देन आप कहते हैं कि भैया तू एक काम करो, तुम सिर्फ इतना कर लो, बाकी का मैं देख लूंगा। दैट्स व्हाट भगवान सेज दैट, कि कलयुग में यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, एनी वर्णाश्रम धर्म प्रॉपर्ली, सो जस्ट डू द सिंपलेस्ट थिंग, जस्ट चांट द नेम ऑफ द हरि। कलोर नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस वन। इसीलिए जो भी सेंट आए कलयुग के अंदर, यू टेक एनी पिक्चर ऑफ द सेंट, चाहे मीराबाई ले लो, जलाराम बापा ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, संत ज्ञानेश्वर ले लो, संत तुकाराम ले लो, संत एकनाथ ले लो, एनी सेंट यू टेक पिक इट अप। आपको जो, आप जिस प्रांत में हो उस प्रांत में किसी भी एक सच्चे संत को उठा लो, क्या किया होगा, उसके हाथ में माला होगी या उसके हाथ में एक तारा होगा जिससे वो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। सो इन कलयुगा द धर्म इज बेसिकली भगवान का नाम संकीर्तन, राइट। अब इसके जो 3 है साधु नाम, जो there are 3 शब्द है जिसको हम समझेंगे। पहला है कि साधु, तो साधु की परिभाषा क्या है, साधु कौन है, साधु की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, राइट। परित्राणाय साधु नाम, तो साधु कौन है, जैसे प्रभुपाद ने कहा, ही हैज द क्वालिफिकेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात भक्ति होली एंड फुल्ली। उसके पास क्वालिफिकेशन क्या है साधु, अगर किसी को साधु कहना है, अच्छा बहुत अच्छे साधु है, यू आर साधु, जिसकी रक्षा करने भगवान आते हैं या जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, वो साधु कौन है, कि उनके पास क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ही है, कि वो भगवान के पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से भगवान के भक्त है, वो उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं समझता। दैट इज व्हाट द सेंट इज, दैट इज व्हाट द साधु इज। ब्रजवासी कहते हैं ना कि और को समझू ना समझू, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी श्री राधा रानी है। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन, दैट इज व्हाट द साधु, दैट इज व्हाट द डिवोटीज। देखिए दूसरा क्या कहा, विनाशाय ज दुष्कृतम, भगवान ने कहा कि मैं जो अधर्मी है उनका विनाश करने के लिए आता हूं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो भगवान को अधर्मियों का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं है। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से, उनकी अगर एक भ्रुकुटी ऐसी टेढ़ी हो जाए, उनके भय से टेढ़ी भी करने की जरूरत नहीं, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, राइट, सागर पूरा पूरा प्रलय आ जाता है भगवान की भ्रुकुटी के टेढ़ी होने के भय से। तो क्या उनको किसी को मारने के लिए, किसी अधर्मियों का विनाश करने के लिए उनको क्या इस धराहर पे अवतरित होना पड़ेगा? नहीं, ही डोंट नीड टू कम दैट। उनकी इच्छा की भी जरूरत नहीं, उनकी भ्रुकुटी के भय से अगर इतना कुछ हो जाता है तो फिर डू ही रियली नीड टू कम टू किल दोस पीपल? नॉट रियली। तो वो क्यों आते हैं? साधु संत और भक्त से मिलने के लिए, क्योंकि प्रीत की रीत रंगीलो जाने, राइट। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दास अपन को माने, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को अपने नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। He just came here to enjoy the rasa of the devotee which devotee is sharing with him. वो या माता यशोदा के हाथ से खाने के लिए आते हैं, वो सुदामा का चावल खाने के लिए आते हैं, right? He come to this planet not to kill the demon, but he come to this planet to enjoy the rasa from this devotee. So परित्राणाय साधुनाम, he just come for them. विनाशाय दुष्कृत की उसको जरूरत नहीं है,
He can do it without even, thinking about it. But he come to enjoy the devotion which you offer with love. अभी जन्माष्टमी आ रही है, right? So जन्माष्टमी आ रही है, what is the पर्व? भगवान जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी में प्रभु आ रहे हैं, जन्म क्यों लिया है? माता यशोदा बाल सखाओं के साथ, गोपियों के साथ अपनी भक्ति रूपी रस का आस्वादन करने के लिए. What they gonna offer it? So on Janmashtami, the best ways you can offer is try to. You don't need to, Janmashtami, Bhagwan actually is not counting how much you have offered, right? Bhagwan is taking what sincerity or with what sincerity you have prepared something for it, or you have offered. Sincerity को accept करते हैं, numbers को accept नहीं करते. नंबर के लिए दुर्योधन के पास क्या था? 56 भोग बनवाए थे उसने भगवान के लिए, जब भगवान गए थे शांति दूत बन के, लेकिन उन्होंने उस भोगों को ठुकरा दिया. उन्होंने क्या किया? विदुर के घर पे जाके साग खाया, right? So he don't accept the numbers, he accept the sincerity and the love. So Janmashtami aa rahi hai, if you can try to offer something with such a love and devotion with purity, Krishna is very happy to accept, right? वो तो माखन में खुश हो जाते हैं, माखन मिश्री में. What is the best in your capacity? Try to do it. Don't worry about the numbers, right? क्योंकि वो यहाँ पे क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम. He just come here to test the rasa which devotee is trying to share with them. Someone has raised the hand. Please go ahead. Nothing. 4.9 जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वीति तत्वः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मम इति सो अर्जुन. भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव अर्थात अपीयरेंस तथा मेरे कर्मों का दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस संसार में शरीर छोड़ने के बाद कभी वापस से पुनः जन्म नहीं लेता, राइट? अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है. तो देखिए, द इम्पर्सनलिस्ट एंड द योगीज attain the liberation only after much trouble and many birth. जो योगीज है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो एक टांग पे खड़े रहते हैं, जो भगवान को ध्यान में मेडिटेशन करते हैं, they will try to do it liberation after many birth. They can get a liberation, and that liberation is not 100% complete. They are partial. There is a risk for coming back as well. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body of the Lord, भगवान के सिर्फ इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझने से भगवान कह रहे कि उसको वापस आना नहीं पड़ता. अरे इससे सिंपल क्या रास्ता होगा इस संसार से निकलने का? भक्ति से सिंपल कोई रास्ता है तो मुझे बताओ, राइट? जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ तो भगवान ने गीता के अंदर 11 से 12 रास्ते बताए हैं जो जिसमें भक्ति की जरूरत नहीं है, और कुछ 11 के आसपास रास्ते बताए हैं जिसमें भक्ति से आप इस संसार से निकल सकते हो, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दैट. क्या है? सिर्फ भगवान के अपीयरेंस और उनकी एक्टिविटी के प्रकृति को जानना है बस. भगवान की लीलाओं के बारे में जानो, समझो, भगवान को समझो, दैट इज इनफ. भगवान से तूने इतना समझ लिया ना, ठीक है, चलो आ जाओ बाहर. इससे अच्छा और इससे सिंपल रास्ता कौन सा होगा भक्ति से अच्छा? क्यों एक टांग पे खड़े रहना, क्यों भूखा रहना, क्यों अपने आप को तपाना, क्यों ये करना वो करना? सिंपली भक्ति में लगे रहो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला के बारे में जानो, हो गया. किसी को कथा का ये रहता है ना, चटका रहता है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कथा. दिस इज व्हाट इट इज. उनके लिए अपना लिबरेशन का रास्ता भगवान ने इसके जरिए भी खोला हुआ कि तुम कथा सुनते रहो, मेरे बारे में जानो, दैट इज इनफ. यू विल गेट आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ. इट्स वेरी सिंपल. डिवोशन के हर एक लिम्स को, डिवोशन इतना सिंपल है और उसके लिम्स इतने सिंपल है कि कोई बच्चा, इसीलिए तो देखो ध्रुव महाराज ने क्या किया, बच्चे थे, भगवान को प्राप्त कर लिया. प्रहलाद महाराज ने बच्चे थे. चलिए, ये तो प्रहलाद महाराज की तो कठिनाई बहुत बड़ी थी. ध्रुव महाराज ने भी कुछ तो 6 महीने भगवान की भक्ति की तपस्या की. लेकिन नामदेव महाराज, भक्ति इतनी सिंपल है कि बच्चा भी कर सकता है. नामदेव महाराज ने 3 दिन में विठोबा को प्रकट कर दिया. पूरे जीवन में करीबन 53 डॉक्यूमेंटेड लीलाएं हैं भगवान विठल देव और नामदेव के साथ. ये डॉक्यूमेंटेड है. देयर आर सो मेनी अनडॉक्यूमेंटेड. क्या किया? 3 दिन में भगवान, 3 दिन भगवान की भक्ति की, 3 दिन में भगवान विठल देव को प्रकट कर दिया, विठल देव को राजी कर लिया. बस तब से लेके, और कितने साल के थे वो? 6 साल के. 6 साल के भी नहीं, आई थिंक ही वाज 3 इयर्स ओल्ड. 6 साल के तो ध्रुव थे. 3 साल में नामदेव ने 3 दिन के अंदर भगवान विठल देव को प्रकट कर लिया. अब इससे अच्छा कौन सा मेथड होगा विच इज सो इजी, बच्चा भी कर सकता है,
right? That is what the benefit of devotion on 4.9. The last one is 4.10. Any questions on that one? 4.9. Okay. 4.10. Vitaraga Braya Krodha Mam Maya Mama Upastritah Bahavo Gyana Tapasa Puta Mad Bhavam Agatah. भगवान लास्ट में क्या कह रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान ने कहा कि भूतकाल में मीन्स पहले बहुत सारे लोगों ने इस दिव्य ज्ञान का सहारा लेके दे गेट क्लिंज्ड, अर्थात भागवत गीता का सहारा लेके, इस ज्ञान का सहारा लेके दे गेट आउट ऑफ दिस। यस ममता भाभी, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। They get the divya prem. Now that is a little bit long explanation on this one. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Shri Rupa Goswami explain करते हैं कि the 9 limbs of devotion, right? तो devotion कैसे आपको रस, यहाँ पे भगवान ने क्या रस की प्राप्ति हुई दिव्य ज्ञान का सहारा लेके। So आधो श्रद्धा is the first thing. आपके अंदर श्रद्धा होना जरूरी है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति। आधो श्रद्धा, फिर साधु संतो। जब श्रद्धा हुई, आप साधु का संग कीजिए। साधु अर्थात नॉट नेसेसरी द सैफरन रो पीपल, आपके मित्र भी कोई हो सकते हैं जो भक्त हैं, जो भगवान के ज्ञान का अध्ययन करते हैं, कथा वार्ता करते हैं। यू डिस्कस विद देम, ही इज आल्सो साधु। साधु इज बेसिकली डिवोटी। तो आप उनका संग कीजिए, राइट? आपके पास श्रद्धा है, आप उस मित्रों का संग कीजिए, उस परिवारजनों का संग कीजिए, वो साधु है। फिर भजन क्रिया में अपने आप को निवृत्त कीजिए। भजन क्रिया अर्थात भगवान का नाम जपना, भगवान का कीर्तन सुनना, भगवान की कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ से बचे, पाप से बचे, राइट? निष्ठा रुचि, धीरे धीरे आपकी निष्ठा रुचि बढ़ती जाएगी। किसमें? There are many people in this group, they have told me how the track record was. अभी धीरे धीरे उनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि हर दिन श्रीमद् भागवतम को पढ़े बिना, एक पेज भी पढ़े बिना उनका दिन नहीं करता। एवरी डे, दिस इज हाउ व्हाट हैपन। निष्ठा और रुचि, उनमें अंदर निष्ठा भी बन चुकी है, कॉन्क्रीट हो चुका है, बेस बन चुका है, और निष्ठा की वजह से उनकी रुचि अभी लगने लगी है भक्ति में। It's not artificial. You cannot force yourself artificial in any of the things. किसी भी रिलेशन में भी आपने आपको फोर्स नहीं कर सकते। किसी भी टॉपिक में, किसी को भी मूवी में, किसी भी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, राइट? इट डेवलप स्लोली स्लोली, एंड व्हेन इट डेवलप, आप स्मूथली नेविगेट करते हो। वैसे ही भक्ति है। भक्ति में जब आपकी निष्ठा पुख्त हो गई, तो धीरे धीरे आपकी रुचि ऐसी बढ़ने लगेगी, देन आपको उसके अलावा और कोई चीज सुहाएगी नहीं। सो रुचि डेवलप्ड हो गई, राइट? धीरे धीरे रुचि बढ़ने से फिर आपका भाव डेवलप होगा। मैनी पीपल call me and says that how to develop that bhav, this bhav, and that. Bhav is the second last stage. आपको उससे पहले इस स्टेज प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। फिर आपके अंदर भाव डेवलप हुआ, द स्पेसिफिक भाव, जिस भाव में आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डेवलपिंग द भाव, इट इज स्लोली स्लोली। जिससे आपकी रुचि बढ़ेगी, जिस सेवा के जरिए आपकी रुचि बढ़ेगी, धीरे धीरे उस रुचि से आपका भाव डेवलप हो जाएगा। और जब वो भाव डेवलप होगा, राइट, उसके ऊपर एक प्रेम रूपी कमल खिलेगा, राइट? दैट इज द प्रेम। वो भगवान के लिए प्रेम है। जैसे ये मीराबाई, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, उनके सबके पास भगवान के लिए प्रेम था, और उसी प्रेम को चखने के लिए प्रभु हर युग में अवतरित होते हैं। He want to come and taste that love which devotee is trying to share with them, that rasa, that prema, right? That is how you get, a rasa or prema or bhava, slowly slowly starting with the adho shraddha. That is the first stage of the devotion, adho shraddha. श्रद्धा रखिए, जो आपको यहाँ तक लेके आया है वो आगे भी लेके जाएगा, right? That's complete our Gita section. Any questions? Someone has raised the question again, raised the hand again if you want to share something. Okay.
Anyway, so the first question we already discussed. प्रभु भगवान एक हुआ छता जुदा जुदा मनुष्य ने जुदी एक साथी अनुभव है. Second question is प्रभु जी, I feel कि अब श्रावण चल रहा है, अगर हम शिव जी की जगह कृष्ण को याद करें तो क्या शिव जी नाराज हो जाएंगे? Many people has this doubt about it. The third question is Hare Krishna Prabhu ji, can you please discuss about Draupadi and Krishna? Sorry, Shweta Mata ji, I started drafting it, but after finishing all this drafting, I fell asleep yesterday, so I could not complete it. But we'll take one or two incident. So we'll start the second one. So simple, आपने कहा कि भगवान शिव नाराज तो नहीं हो जाएंगे बिकॉज श्रवण चल रहा है. तो किसी भी चीज, किसी भी इंसान प्रसन्न कैसे होता है, कोई भी इंसान नाराज क्यों होता है, अगर आपको समझना है तो पहले उस इंसान के बारे में जानना पड़ेगा कि वो इंसान कौन है और उसको क्या प्रिय है. राइट. सो भगवान शिव कौन है? तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में 13वां चैप्टर श्लोक नंबर 16 में कहा गया है कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम मिदि तथा. अर्थात यहाँ पे जो मेन वर्ड है वैष्णवानाम यथा शंभु, यहाँ पे हर एक क्षेत्र के लेजेंड को कहा गया कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो गंगा, भगवान कौन है तो अच्युत, और वैष्णव कौन है तो भगवान शंभु अर्थात शिव, और पुराण सबसे अच्छा कौन सा है तो अर्थात ये, अर्थात भागवत, श्रीमद् भागवतम. तो वैष्णव नाम यथा शंभु. सो सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान शिव. अगर मैं कहूं कि किसी भक्त या किसी कोई भी भक्त को आप जानते हो, उसे सबसे ज्यादा प्रिय क्या होगा तो भगवान होंगे. राइट. तो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? उनके भगवान, उनके आराध्य. राइट. दूसरा, सो पहली चीज क्वालिफिकेशन क्या है, कौन है भगवान शिव? तो ये श्लोक कहता है कि ही इज अ वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये सबसे बड़े वैष्णव है. राइट. भक्त शिरोमणि है भगवान शिव. दूसरा श्लोक क्या है? ये भी श्रीमद् भागवतम में, जब यमराज यमदूतों को कहते हैं कि देयर आर 14 पीपल ऑन दिस प्लैनेट, उनका टीचिंग और उनका इंस्ट्रक्शन यू शुड टेक इट एज इट इज, एंड दे आर ओनली द ऑथराइज्ड टीचर. उनका टीचिंग को ऑथराइजेशन के हिसाब से लेना चाहिए, एंड यू शुड फॉलो इट, अदरवाइज नो वन एल्स. सो द ऑथराइज्ड प्रोफेसर जो है, जो महाजन है, उनका नाम श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्मो बलि वयारसकी वयम. जो उसमें तीसरा नाम है वो भगवान शिव का दिया गया है. तो भगवान शिव वैष्णव, परम वैष्णव है, दूसरे परम आचार्य भी है. इसीलिए जो चार मुख्य संप्रदाय है उसमें से एक संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहा गया है, जो भगवान शिव जिसके हेड है. रुद्र संप्रदाय मीन्स जो विष्णु स्वामी, अर्थात जो वल्लभाचार्य संप्रदाय, दैट इज रुद्र संप्रदाय एक्चुअली. सो स्वयंभू नारद शंभु, सो ये आचार्य है किसके? भगवत शिक्षा के, spiritual knowledge के आचार्य. He is one of the president acharya of one of the four sampradaya. There are four sampradaya: Kumar sampradaya, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड रुद्र संप्रदाय. तो एक संप्रदाय के आचार्य है. तीसरा क्वालिफिकेशन, वो इस संसार में सबसे बड़े गुरु हैं. राइट. तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना. पूरे वेद किसका वखान करते हैं? भगवान शिव का. किस डेजिग्नेशन से? गुरु की डेजिग्नेशन है. और वो गुरु क्या कहते हैं? माता पार्वती से, माता उमा से, रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना. कि संसार में अगर कोई सत्य है, सत अर्थात सत्य है, तो व्हाट इज दैट? सत हरि भजन, भगवान हरि का भजन है. राइट. इसीलिए हम जब गुजराती में भगवान शिव की आरती करते हैं, राइट, द लास्ट लाइन व्हाट इट सेज, भोड़ाबू धरने भजता भवसागर तरसो, बिकॉज लॉर्ड शिव इज क्वालिफाइड टू गिव योर लिबरेशन. भोड़ाबू धरने भजता भवसागर तरसो, तुम्हें भवसागर ने तरी जसो, एंड हरि चरणे जासो, you will be a devotee of Lord Hari. That is the benediction can Guru give. गुरु क्या करता है? अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दिखा के सही जगह पहुंचाता है. तो भगवान शिव क्या करते हैं? आपको इस मटेरियल संसार से निकालने का प्रबंध करते हैं, और क्या करते हैं? आपको हरि के चरणों में पहुंचाते हैं. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल.
काशी, दिस आई हैव कोटेड मैनी टाइम्स बट सिंस यू आर न्यू आई विल कोट अगेन। काशी का मरण बहुत फेमस है। वहां पे जो भी मरता है उसे क्या होता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। बट यू नो व्हाट इज द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट, उनको मुक्ति कैसे मिलती है? तो काशी में भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि जो भी जीव यहाँ पे अपना शरीर छोड़ेगा, मैं खुद काशी विश्वनाथ उसके कानों में जाके राम तारक मंत्र का दीक्षा दूंगा। सो दिस सेम स्टेटमेंट, बोड़ा बुधरने बचता भवसागर, so he will deliver you, who will take who will get die into the Kashi, they will get liberation, he will deliver you, right? But how? By initiating him into the राम तारक मंत्र। बोड़ा बुधरने बचता भवसागर को तार देंगे वो और हरि चरणों में पहुंचा देंगे। कैसे? राम तारक मंत्र का उच्चारण उसके कानों में करके उसे पद्धति सर रुद्र संप्रदाय के अंदर इनिशिएट करके उसके गुरु बन के उसे भक्ति का प्रसाद देंगे। सो दैट इज व्हाट भगवान शिव, राइट। उनको प्रिय क्या है, भगवान शिव को प्रिय क्या है? सम्मोहन तंत्र। सम्मोहन तंत्र में भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं कि ब्रह्मानंद की अनुभूति से अनंत गुणा मधुर। ब्रह्मानंद क्या है? जो योगी जिसका आस्वादन करते हैं। सो ब्रह्मानंद की अनुभूति से अनंत गुणा मधुर है भगवान नारायण के चरण कमलों की भक्ति का रस। भगवान नारायण के जो चरण कमलों की भक्ति है उसका जो रस है वो ब्रह्मानंद के भोग से ज्यादा मधुर है, पर उससे भी कोटि गुणा उज्जवल ब्रजराज नंद नंदन श्री कृष्ण की कल्लोल मालिनी भक्ति है, राइट। नारायण के चरण कमलों की भक्ति के रस से भी उज्जवल क्या है? ब्रजराज नंदनंदन श्री कृष्ण की कल्लोल मालिनी भक्ति है। पर हे उमा सुनो, क्योंकि तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है इसलिए तुम्हें मैं ये रहस्य बताता हूं। भगवान शिव अभी द कोर रहस्य रिवील कर रहे हैं। क्या? कि मेरी जिह्वा पे राम नाम, मेरे हृदय में श्री कृष्ण तत्व और मेरी आत्मा में वृंदावनेश्वरी श्री राधा के पद पद्म सदा विराजमान रहते हैं। दैट इज व्हाट ही इज। क्या है वो? उनकी जिह्वा पे राम नाम। राम कह के ही उन्होंने पूरा विष का जो हलाहल विष था अपने गले में धारण कर लिया। रा कह के उन्होंने मुंह खोला और मां कह के बंद कर दिया। मेरी जिह्वा पे राम नाम, मेरे हृदय में श्री कृष्ण तत्व और मेरी आत्मा में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा के पद पद्म सदा विराजमान रहते हैं। दैट इज द मूड ऑफ श्री गोपेश्वर। इसीलिए जब गोपेश्वर ने गोपी मानसरोवर जो वृंदावन में स्थित है वहां पे जब स्नान किया, जब वो मानसरोवर में स्नान करके बाहर आए, उनको गोपी वेश मिला, उस समय भगवान शिव ने किसका उच्चारण किया? श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानु नंदनी वजेंद्र सूनु संगीते कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो भगवान शिव जो है आपके ऊपर दो प्रकार की कृपा करते हैं, जैसे एक रावण पे की और एक नरसिंह मेहता पे की। एक सकपट कृपा, एक निष्कपट कृपा। सकपट कृपा जो उसने रावण से की, रावण को शक्ति जैसी शक्ति दे दी लेकिन उसे भक्ति प्रदान नहीं की। जबकि नरसिंह मेहता ने भगवान से क्या कहा कि हे शिव अगर आप मुझसे प्रसन्न है। नरसिंह मेहता ने 7 दिन तक भगवान शिव की तपस्या की थी। तब भगवान शिव उनको प्रसन्न हुए और बोला नरसिंह तुम्हें क्या चाहिए? तो नरसिंह मेहता ने कहा कि प्रभु आप अगर मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे वो चीज दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न हो। तो भगवान शिव ने उसे कृष्ण भक्ति प्रदान की, क्योंकि ये परम वैष्णव है, परम प्रेमी है, परम अनुरागी है। तो भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या थी? कृष्ण भक्ति, जो उन्होंने नरसिंह मेहता को प्रदान की। और फिर नरसिंह मेहता ने कहा कि फिर प्रभु आप मुझे भगवान के रास का दर्शन कराइए। और तब भगवान शिव सदैव नरसिंह मेहता को इस जगत से लेके गौलोक वृंदावन ले जाते हैं और वहां पे जहां खड़े रह के गोपेश्वर रास का दर्शन करते हैं उसी जगह पे नरसिंह मेहता को भगवान ने खड़ा रखा और रास का दर्शन करवाया। ये है भगवान शिव का मूड, ये है भगवान शिव की कृपा। तो सोचिए भगवान शिव किससे ज्यादा प्रसन्न होंगे? आपसे प्रसन्न होंगे अगर उनकी भक्ति करोगे, या उनके खुद के प्रिय की भक्ति करोगे तो प्रसन्न होंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान है, आप उसकी वाह वाह करो, उससे ज्यादा वो खुश कब होता है? जब आप उसके सबसे प्रिय व्यक्ति की सेवा करो या प्रिय व्यक्ति के लिए काम करो। सिमिलरली श्रावण में आप भगवान, मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, ये सबसे बड़ा अपराध है, वो सबसे बड़े वैष्णव है। लेकिन
अगर उनसे मांगना है तो बस उनकी निष्कपट कृपा मांगे, उनसे मांगना है तो वैसा मांगे जो नरसिंह मेहता ने मांगा था, राइट? भगवत भक्ति, और वो सबसे ज्यादा खुश होंगे आप अगर उस मूड से भगवान की सेवा करेंगे, भगवान शिव की, राइट? इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Prabhu. Thank you. No worries. So about Draupadi, this is the last question. So द्रौपदी का एक्चुअली जन्म हुआ था यज्ञशाला से, वो एक्चुअली कृष्ण के लिए ही हुआ था। द्रौपदी का जन्म जो हुआ था वो युग परिवर्तन के लिए हुआ था, और ये इतना आसान नहीं था। वो कहता है ना कि प्रीत लगानी बड़ी सोखी है सांवले के नाल, लेकिन निभानी बड़ी औखी है, राइट? सो द्रौपदी बनी ही थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, राइट? उसने पल पल उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, पल पल उसकी हर जो उस शादी के बाद इनफैक्ट whatever the task, whatever the stepping stone she got in her life, वो बहुत चैलेंजिंग थे, वो कोई मामूली नहीं थे, क्योंकि द्रौपदी मामूली नहीं थी। और आपने कहा कि रक्षाबंधन का उनका, तो मुझे एक ही इंसिडेंट याद आता है कि जब शिशुपाल का वध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन को वापस ले रहे थे, तब उस समय उनको थोड़ा सा खून निकला, तो बाकी सब लोग जो थे वो कुछ पट्टी मलहम ढूंढने लग गए, लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी, स्पॉन्टेनियस, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस डिवोशन। स्पॉन्टेनियस डिवोशन के अंदर आप प्लान नहीं करते, आपका जो प्रेम है वो छलकता है आपके एक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस डिवोशन। तो द्रौपदी के पास भगवान के लिए स्पॉन्टेनियस डिवोशन था। उन्होंने ये कुछ नहीं, जैसे अपने किसी को लगा, अपने बेटे को लगा, अपने पति को, कुछ भी, यू वोंट गो एंड चेक दिस इज, फटाक से जो मिला उससे अपने काम चला। द्रौपदी ने कुछ देखा नहीं, अपनी साड़ी को फाड़ा और भगवान को बांध दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ राखी। भगवान ने उसको, जब भावग्राही जनार्दन है ना, तो आप जो ऑफर करेंगे उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही विल टेक इट। जैसे हमने पहले भी कहा, पूतना गई थी जहर देने के लिए, बट भगवान ने उसका बेस्ट निकाल के उसको माँ का दर्जा दिया। तो द्रौपदी ने उसके घाव पे पट्टी बांधी थी, लेकिन ही इज अ भावग्राही जनार्दन, तो उसने उसका बेस्ट उठा के उसको रिलेशन में फिट कर दिया कि ओके आई विल कम टू प्रोटेक्ट यू। सो व्हेन, जब there is a very good outcome from this also, when there is a चीर हरण हुआ द्रुत कीड़ा के अंदर, उस समय द्रौपदी पहले अपने साड़ी को संभाल रही थी। At the time she was looking at Bhima, Arjuna, Duryodhan, Nakul, Sahdev ki someone will come and protect, right? Pitama, Bhishma, no one protected. And then at the time she thought that no, I'm helpless, I cannot do anything at this point. And then at the time she has raised her hand. That is what the mudra of Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु की ऐसी मुद्रा क्यों है हरे कृष्णा कहने से, कि भैया देखो प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग, आई एम इन अ कंप्लीट सरेंडर्ड मूड, you can take care of me the way you want it. That is called the complete surrender mudra. So द्रौपदी ने ऐसे ही दोनों हाथ उठा के भगवान को याद किया कि अभी सब कुछ तेरे हवाले है, तेरे को जो करना है कर। The moment द्रौपदी does that, भगवान ने उसको प्रोटेक्ट किया। तब द्रौपदी ने भगवान को उल्हाना दिया कि तुम पहले नहीं आ सकते कृष्णा, जब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश, तुम पहले नहीं आ सकते थे। तब कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि तब तुझे मेरा सहारा थोड़ी था, तब तुझे सहारा था भीम की गदा का, अर्जुन के गांडीव का, राइट? तुम्हें उन सब का सहारा था। तो इस समय भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जब तक आप किसी और के सहारे हैं, कृष्णा इज नॉट गोइंग टू एक्ट। ही माइट नो यू, यू माइट नो हर, बट ही इज नॉट गोइंग टू एक्ट टिल यू आर इन अ शेल्टर और यू आर एक्सपेक्टिंग द शेल्टर ऑफ समवन एल्स। लेकिन जब आप उसकी शरण में ग्रहण करोगे, उस टाइम ही इज गोना एक्ट। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो, नहीं, साधु महात्मा कहते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति कामिनी हो चलेगा, लेकिन व्यभिचारिणी ना हो। कामिनी अर्थात कि आप भगवान से प्रेम करो, भक्त करो, चाहे आपके अंदर थोड़ी बहुत लालसा हो, लेकिन मांगो किससे? उसी से। लेकिन हाँ, दैट इज कॉल्ड कामिनी भक्ति। आप किसी कामना से भगवान की शरण में जा रहे हो, राइट? भगवान कहते हैं गीता में कि अथो आर्थी जिज्ञासी ज्ञानी। अथो अर्थात जिसके जिसके पास दुख है, जो पीड़ित है। आर्थी अर्थात जिसको धन चाहिए। अथो आर्थी जिज्ञासी और जिज्ञासु ज्ञानी, ये सब मेरे पास आते हैं। 4 कैटेगरी ऑफ डिवोटीज हैं, तो उसमें सेकंड नंबर इज कामी। तो भक्ति कामिनी हो चलेगा, लेकिन व्यभिचारिणी ना हो। व्यभिचारिणी का मतलब क्या है? सुबह यमुना दास, शाम को गंगा दास। सुबह मैं इसको भी जाके मांगूंगा, इसको भी चरण स्पर्श करूंगा, इसको भी मांगूंगा, इसको भी भगवान, इसकी भी जय करूंगा, शाम को कहीं और जाके किसी और के साथ में कर दूंगा। तो भगवान को वैसे भक्त प्रिय नहीं है जो व्यभिचारिणी हो, राइट? सेम फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज कामिनी व्यभिचारिणी, अर्थात अगर कोई पत्नी है
पत्नी अपने पति से प्रेम करे लेकिन उसके अवज में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते कि मुझे ये गिफ्ट ला के दो, वो गिफ्ट ला के दो, तो मैं ये करूंगी, वो दैट्स ओके, हस्बैंड इज स्टिल टेकिंग दैट, नो वरीज, ठीक है, इट्स ओके, ऐसी है वो। बट द मोमेंट द वाइफ इज डूइंग व्यभिचारिणी, अर्थात शी इज गोइंग टू समवन एल्स, राइट, फॉर द गिफ्ट्स एंड भगवान, किसी भी हस्बैंड को वो प्रिय नहीं होगा। वैसे ही भगवान भी है, तो भक्ति काम ही नहीं हो, व्यभिचारिणी ना हो। That is what it is. I hope I have tried to cover. आपका मैं ड्राफ्ट नहीं कर पाया because it was very late. So I'm sorry for that. But ये जो रक्षाबंधन का मुझे यही एक इंसिडेंट याद आया था, तो this is what it is. But we can discuss some other time about Draupadi. It's a very powerful character of Mahabharata. Yeah, Prabhuji. Thank you. No worries, Mataji. Any questions? Any comment? आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चला. And now we can start our chanting. Okay, you're ready, Pragya Mataji? સંદીપ પ્રભુ, Yes. હું રેડી છું પણ ટ્રાવેલિંગ કરું છું, તો અવાજ આવશે વધારે? No, that's fine. This is clear voice. That's okay. Okay. I will put the recording and you can just tell me the counting. So this is the last this thing. We'll chant one round and then we'll stop. રેકોર્ડિંગ હું મૂકું?
राम राम हरे हरे Nice. Thank you. Thank you very much, everyone, for joining us today. Sorry for it is a little bit longer. Okay, so we'll take a leave. Vancha kalpatarubhayasya. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhayasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Hare so much. Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.